So illustration 31, see what's given there. Anita and Tony, each doing business as sole proprietors, started a partnership on 1st April 2018. Okay. Anita brought in plant and machinery valued at 5 lakh, whereas Tony brought in furniture costing 50,000 and 7 lakh in cash. तो ये कहाँ जाएगा? जो भी वो कैपिटल ला रहे हैं, this will go to partners capital account. Okay, as buy furniture and buy cash and buy plant and machinery. This is supposed to go to your partner's capital account. Since the business needs more funds, Tony gave a loan of 2 lakh to the firm on 30th June 2018. तो टोनी ने टोनी ने फर्म को लोन दिया है ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन व्हाट डेट? ऑन 30th June 2018. सो बदले में फर्म को टोनी को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन इज डेबिटेड टू पीएनएल. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है ये. पहले तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा कितना? 2 लाख इनटू 30th June. For how many months? 9 months. And have they given you the rate of interest in the entire question? Nowhere. So you will assume it to be 6%. Interest on loan as an expense can be assumed to be at 6% as per the Partnership Act. But income वाला जो interest on loan होता है वो आप खुद से 6% assume नहीं कर सकते. Okay? कितना आ जाता है ये? 9,000. Okay. Now let's go further. Their partnership deed provided for IOC, IOD, Anita's commission, Tony's salary. ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा P&L appropriation में. Tony withdrew 5,000 at the end of every month. चलो बताओ. IOD में Tony का IOD कितना आएगा? Tony has withdrawn 5,000 at the end of every month. तो Tony की total drawings कितनी होगी? 5,000 into 12, 60,000 into what is the rate of interest for drawings? 6%. Into when the date is not given, then you take it to be 6 months, but over here it's given at the end of every month. At the end of every month का average period कितना होता है? Over here you will take it to be 5.5 and not 6. कितना आ जाएगा ये? कैलकुलेट कीजिए. All of you got it? किस किस को आया 1650? Okay, next. Anita. How much Anita has withdrawn? 30,000 on 1st August. So 30,000 into 1st August से लेके 31st March तक कितने number of months हो जाएंगे? August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 8 months. So कितना होगा? Calculate कीजिए. So for Anita it is simple IOD. But for Tony it is average period. Got it? Next information, the net profit of the firm. Okay, this is nice. Let's observe this carefully. Net profit after debiting Tony's salary, okay, of rupees 12,000, but before any interest due, okay, is how much? 4 lakh. मतलब क्या मतलब हुआ? ये जो आपका बाय P&L 4 लाख है, इसमें क्या गड़बड़ है? पहली बात तो आपने इसमें से टोनी की सैलरी माइनस कर दी, विच यू आर नॉट सपोज टू डू, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन में टू सैलरी लिखा जाता है, P&L में नहीं लिखा जाता. तो आपको सैलरी को क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, एड बैक करना पड़ेगा टोनी के सैलरी को, विच इज 12,000. और इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया. सी एनीवेज IOC और IOD तो आप कंसिडर करोगे ही नहीं. यस, सो उसका तो पॉइंट आता ही नहीं है. इट इज जस्ट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस वाला. तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कंसिडर नहीं किया वो अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ P&L आइटम. इन P&L यू आर सपोज टू डेबिट इट, सो यू हैव टू रिड्यूस योर
4 lakh profit with interest on loan. How much is the interest on loan? We just calculated 9,000. So you need to subtract this 9,000. Then only you will be able to get the corrected profit. कितना आएगा? So that is your starting point. Got it? Okay. So go to P&L appropriation. Write down here. By profit and loss account, 4 lakh plus Tony's salary, 12,000 minus किसने लोन दिया है फर्म को? इंटरेस्ट ऑन टोनीज लोन. टोनी का लोन माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ पीएनएल आइटम. जब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लेते हो तो उस प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया होना चाहिए. यस. Okay, so this will give you 4,03,000. Now, this is the corrected profit. From this, you appropriate IOC, salary, commission, and you charge IOD. Okay, so do the appropriations to interest on capital account. कितना आया आपको? अनीता का कितना इंटरेस्ट लोगे? अनीता ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? कैसे 50,000 आएगा? एग्जैक्टली. प्लांट एंड मशीनरी जो वो लेके आ रही है आप उस पर ले सकते हो. नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज अ कैपिटल इटसेल्फ. सो 5 lakh into what is the rate of IOC? 10%. So 50,000 for Anita and for Tony it will be 7,50,000 into 10% which gives us 75,000. So what is the total in the outer column? आ गया सबको 1,25,000. Okay, next. 2. Whose salary? सैलरी टोनी की है ना. और किसी को भी सैलरी देना है क्या? ऊपर दे रखा है इन्फॉर्मेशन. टोनी सैलरी ही है. So now you appropriate Tony's salary. See if you have added back Tony's salary, you have to now minus it. अगर आपने add back किया तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा. क्लियर. और अगर दोनों नहीं किए तो आपका डिस्क्लोजर गलत हो जाएगा. डिस्क्लोजर गलत हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. 2. कमीशन. कमीशन किसको देना है? तो अनीतास कमीशन. ओके, अनीता को हमें कितना कमीशन देना है? इट्स गिवन ना करेक्टेड प्रॉफिट का. करेक्टेड प्रॉफिट कितना है? 4,03,000 into. Is it after providing such commission or before providing such commission? Before charging such commission. So directly 4% normal. So 4,03,000 into 4% कितना आ जाएगा? Okay. By interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ले लीजिए टोनी और अनीता का. वी जस्ट कैलकुलेटेड. टोनी का हमने कितना कैलकुलेट किया? 1,650. अनीता का हमने कितना कैलकुलेट किया? 1,200. टेक इट इन द आउटर कॉलम. एनीथिंग एल्स? चलो गेट द बैलेंसिंग फिगर. यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर जाएगी वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी कि पार्टनर्स करंट में जाएगी? क्यों? पहली बात तो कैपिटल अकाउंट बनाने बोला, करंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. दूसरी बात, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड अबाउट फिक्स कैपिटल सिस्टम. व्हेन वी डोंट स्पेसिफाई अबाउट फिक्स कैपिटल सिस्टम इट इज अज्यूम्ड टू बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट नहीं बनता है. सही है? ओके. कितना आ रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर की बैलेंसिंग फिगर? हाँ. टोटल बताओ. बाप रे, इतना धीरे बोलेगी तो कैसे चलेगा? सीधा बोलना. 252730. इसको डिवाइड करो. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कुछ नहीं दिया मतलब इक्वल. पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होता तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलिए, अनीता's कैपिटल अकाउंट, टोनी's कैपिटल अकाउंट. स्कूल में भी यही चैप्टर चल रहा है क्या? तभी इतना फटाफट हो रहा है. चलो, डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ रहा है? 126 each. No decimals.
ओके, एंड व्हाट इज द टैली अमाउंट? टैली फिगर कितना है? Yes, Eileen, Ayan and Ayan, have you got this answer? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, good. Chalo, all of you quickly prepare partners capital account and let me know the two balance carried down figure. Chalo, फटाफट. Which one you want? वो हमने एनीवेज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दिखा दिया. लिख सकते हो ये आफ्टर है तो ये ऐड बैक हो जाएगा, ये बिफोर है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आफ्टर चाहिए और टोनी सैलरीज बिफोर चाहिए, तो ये आफ्टर से बिफोर जाने के लिए मुझे ऐड अप करना पड़ेगा, ये बिफोर से आफ्टर जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो आपको करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा. ऑल राइट, चलिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ मैं, ट्राई दैट. Okay. ISC sample paper 2018. For Anita? Correct. For Tony. So you have to take buy plant and machinery in Anita's column, buy furniture in Tony's column, buy bank in Tony's column. Then obviously ये IOC का सेकेंड इफेक्ट बाय IOC, टोनी की सैलरी का इफेक्ट बाय सैलरी, अनीता की कमीशन का इफेक्ट बाय कमीशन, है ना. प्रॉफिट का इफेक्ट बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, आईओडी का इफेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ साथ हम लिखते हैं टू ड्राइंग्स, एंड व्हेन यू राइट डाउन टू ड्राइंग्स यू नीड टू मेक श्योर यू आर टेकिंग अ annual drawing. Annual drawing as in for Tony it's going to be 5,000 into 12 and for Anita it's going to be 30,000. Got it? Then only you will be able to get the two balance carried down. 661,285 for Anita, 901,715 for Tony. Got it? Two balance carried down. ये निकालिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कीजिए. इलस्ट्रेशन 34. क्या? नहीं ना, अरे you didn't come ना in that lecture when I explained it. हाँ, पहले भी एक बार याद कर समझाया था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये पार्टनर्स लोन में जाता है. पार्टनर्स लोन में आप लिखते हो ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके साथ साथ आप लिखते हो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन. सो दिस एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट ऑन लोन का सेकेंड इफेक्ट गोज टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे जो इनकम वाला इंटरेस्ट ऑन लोन आता है ना जो आप ऐड करते हो उसका सेकेंड इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज टू इंटरेस्ट ऑन लोन. जो फर्म ले रही है, ये फर्म ले रही है, जो फर्म की इनकम है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, जो फर्म का एक्सपेंस है वो पार्टनर्स लोन में जाके एड अप हो जाएगा, क्योंकि मुझे पार्टनर का पैसा भी पे करना है तो उसी में उसका इंटरेस्ट भी एड अप कर दूंगी एंड आई विल पे हिम द टोटल वैल्यू. गॉट इट? Okay, please check your answers, all of you. P&L appropriation account. So what is the profit you all have got? आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है? 2,07,000, 2,07,000 दिया, लेकिन इसमें बोला है कि आफ्टर पार्थो सैलरी है. ओके, तो क्या मुझे पार्थो की सैलरी इसमें से माइनस करनी चाहिए? क्या पार्टनर की सैलरी इसमें माइनस होती है? वो गलती से माइनस कर चुके हैं, तो अब हमें इसमें पार्थो की सैलरी को ऐड बैक करना पड़ेगा. दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी आफ्टर पार्टनर सैलरी, यू हैव टू ऐड इट बैक. कितना है पार्थो का सैलरी? 3,000.
और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है हमें, कोई पीएनएल की आइटम है जो कि मिसिंग है? नथिंग एट ऑल. सो 2,10,000 इज योर करेक्टेड प्रॉफिट. चलिए 2 आईओसी कितना आ रहा है सबको? तेज, पार्थो एंड जिनी. ओके ओके yes. Okay, so see, it's given in the question 31st March 2017 की जो कैपिटल अकाउंट है वो unchanged है throughout, but it is for the half year, so what's given there? Throughout the half year ended 31st March 17, their capital remain unchanged. फिर उसके बाद बोला है during 6-month period in 16-17 Tej withdrew 200 at the beginning of every month. ये छोड़ दो अभी के लिए. तुमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया तो वो कौन से बैलेंसेस पे लिया? कैपिटल में कुछ चेंजेस तो नहीं है ना? ओके. और जो तुमने आईओसी लिया वो 6 महीने का लिया कि 12 महीने का लिया? क्यों 6 महीने का लिया? क्योंकि एग्जैक्टली वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था. ये जो हमें आया है ये हमें 6 मंथ्स के हिसाब से आया है. जिन जिन लोगों ने फुल ईयर के हिसाब से ले लिया उनका गलत है आंसर. सी आई कैन शो इट टू यू. ये 1500 कैसे आएगा? इसका कैपिटल कितना है तेज का? 60,000 into what is the rate? 5%. but they have given throughout the half year ended, मतलब बिजनेस उन्होंने मिडिल ऑफ द ईयर चालू किया तो 6 महीने का ही कैपिटल पे इंटरेस्ट लोगे ना, पूरा 12 महीने का कैसे ले सकते हो? तो वो हाफ ईयर पढ़ना बहुत जरूरी था, वरना जल्दबाजी में तुम इसको पूरे साल भर का ले लेते, which is supposed to be wrong. So everything in this question has to be for 6 months only. अगर तुमने सारे एक्सपेंसेस फुल ईयर के लिए हैं, जो कि मान्या मुझे लग रहा है कि दिख रहा है कट कर रही है, पूरे साल भर के लिए हैं, so it will definitely go wrong. You have to look at the dates very carefully. गलत हो जाएगा. You have to take it for half month. Okay. चलिए कितना आ जाएगा ये टोटल? ऑल राइट. नेक्स्ट उसके बाद सैलरी. सैलरी किस किस को देना है? ओनली पार्थो. पार्थो है, ओ लिखा हुआ है. पार्थ की स्पेलिंग में ओ नहीं आता, इट्स पार्थो. आई थिंक सो. ओके तो ठीक है यार, पार्थ बोलो पार्थो बोलो, क्या फर्क पड़ता है? 3,000. कौन सा हमारा फ्रेंड है वो? ओके. नेक्स्ट टू कमीशन अकाउंट. कितना है कमीशन? कमीशन किसको देना है? तेज को देना है. तेज को जो कमीशन देना है वो कौन सी वैल्यू पे देना है? जाके देखो क्वेश्चन में क्या दिया है. तेज इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट. तो तुम्हारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना है? 2,10,000 है ना. कमीशन का रेट कितना है? 5%. रुको वेट, डिनोमिनेटर लेने से पहले देख लो कि 100 लेना है कि 105 लेना है, बिकॉज इट्स गिवन ओवर देयर ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. सो 105. चलो बताओ कितना आ रहा है? 2,10,000 into 5 divided by 105. This gives you 10,000. And everything is going to capital account. Nothing is going to current account here. Oh, sorry. Everything is going to current account, not capital account, because they have given you the current account balances. जब current account के balances दिए हैं मतलब fixed capital system follow हो रहा है. Okay. IOC हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, उसके बाद आईओडी लेना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लेना है. पहले इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ले लो. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में क्या करने वाले हो? टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट किसका लोगे? टू साइड में जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है उसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे जाएगा, उल्टा. तो जिनी का क्रेडिट बैलेंस है, तो जिनी का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 10,000. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का रेट कितना है? 4%. क्या ये भी हमें 6 महीने का लेना चाहिए? ओके. सो कितनी वैल्यू आने वाली है? ओके. नाउ बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट. वेट पहले एक एडजस्टमेंट को तो पूरा कंप्लीट करो. डोंट जंप ओवर टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट.
जिस पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है उसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट जाएगा। ओके, क्या मुझे लॉजिकल रीजनिंग बता सकते हो कि मैंने ये इंटरेस्ट ऑन अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्यों डेबिट किया? बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फॉर्म। बेटा, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, ये सब फॉर्म के एक्सपेंसेस हैं, तभी आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हो। खर्चा है फर्म का, क्योंकि पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म को पे करना पड़ेगा। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो फर्म उससे रिकवर करेगी, इसलिए आप बाय साइड में लिख रहे हो, इनकम साइड पे लिख रहे हो। ओके, सो बताइए मुझे तेज और पार्थो का कितना आएगा। तेज का डेबिट बैलेंस कितना है? 8500। सो 8500 इंटू 4% इंटू 6 months, and for Partho it will be 6000 into 4% into 6 months. कितना आ रहा है अमाउंट? Come on, tell me the values. 170 is correct now. 170 and 120 is correct. So कितना आएगा outer column में? Okay, now the last one, last income. Buy interest on drawings. तेज के करंट अकाउंट में कितना जाएगा? जाके देखो कि तेज ने कितनी ये विड्रॉ करी है ड्राइंग्स. How much is he withdrawing? What is given? What is the sentence given over there? He is given there. Tej withdrew 200 at the beginning of each month. So 200 into 12. Beginning की बात करेंगे मतलब, okay wait, 6 monthly period है, half yearly period की बात हो रही है, और half yearly period में जब beginning of the month होता है, it is supposed to be 6.5 minus 3, which is 3.5 into interest on drawings का रेट कितना है? तो इसके लिए तुम्हें जो वो पूरी एवरेज पीरियड की मैंने समरी दी थी वो याद होनी चाहिए, रिकॉल होना चाहिए कि अगर साल भर का बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 6.5 होता है तो 6 महीने का बिगिनिंग ऑफ द पीरियड विल बी 3.5, which is 6.5 minus 3. 3 मैंने आपको बताया था कैसे आता है, 6 divided by 2, तो 3 आएगा ना एवरेज पीरियड. ओके, फॉर नेक्स्ट पार्ट नाउ, फॉर पार्थो it is 400 into 12 into 2.5, 5.5 minus 3 into 6%. 12 महीने का लेगा ना, एंड ऑफ ईच मंथ. ओ आई एम सो सॉरी, 6 मंथ, आई एम सो सॉरी. 6 महीने का लेना पड़ेगा ना. बट है तो मंथली ना. एक मिनट, 12 से आ रहा है क्या आंसर? गलत आएगा ना, अभी सही आ रहा है. दिस इज द करेक्ट आंसर 21. 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर तो. हाँ एग्जैक्टली 21 एंड 30 पार्थो का. तो 6 नहीं लेगा तो कैसे आएगा? वो तो मंथली हो जाएगा फिर. यू हैव टू मल्टीप्लाई नो विद 6. बाय मिस्टेक मैंने वो, मेरे माइंड में 1 ईयर चल रहा था. 6 मंथली पीरियड है तो आपको इंटू ही 6 करना पड़ेगा और आपका एवरेज पीरियड भी 6 मंथली ही आएगा. सब कुछ 6 मंथ, everything will be 6 monthly here. Even the drawings will be 6 monthly, total drawings. Even the average period will be 6 monthly. You will get this. You will get it this way. Okay, Jenny का क्या है? Yes, because it's given over there. She is withdrawing 1800 during the period of 6 months. तो 1800 पूरा लोगे, during the period है, और during the period के लिए आप हमेशा 6/12 लेते हो, बट ये 6 मंथली पीरियड है तो आप क्या लोगे? 3/12 into 6%. तो कितना आ जाएगा ये? 27. इन तीनों को टोटल अप कीजिए, कितना आएगा आउटर कॉलम में? सो दिस इज द वर्किंग नोट व्हाट आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर आईओडी. इसका टोटल कितना आ रहा है? 78. तो 6 मंथ्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वरना आंसर नहीं आने वाला. Everything over here is for 6 monthly periods. It's a very good question. Something like this can be asked in the exam and you can all make errors क्योंकि आप सब कुछ 12-12 महीने का लोगे.
है ना? आधा 12 महीने का लिया, बहुत ही बढ़िया। ओके चलो प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट कितना आ रहा है? Get the profit all of you. Online students, is this point clear? You have to take everything for 3 months, or sorry 6 months. Yes, ma'am. Okay, tell me Tej, current account, Parthos current account, Ginny's current account. आपने देखो पूरे आंसर में कहीं भी करंट अकाउंट नहीं लिखा, एटलीस्ट प्रॉफिट में तो लिख देना, एक जगह तो लिखो कम से कम फाइनल प्रॉफिट में। वो कोई बात नहीं, एग्जाम में टीपीजी नहीं लिख सकते पहली चीज, और दूसरी चीज एटलीस्ट फाइनल प्रॉफिट में करंट अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम में, दैट इट इज गोइंग टू करंट अकाउंट एंड नॉट कैपिटल अकाउंट। चलिए बताइए बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 193,918। टेक्स्ट बुक ओपन है क्या? कर रहा है ना खुद से? गुड। 193,918। ओके एंड डिवीजन? सो राउंड अप। कोई बात नहीं, एक को 1 रुपया कम दो, एक को 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, एक को 1 रुपया कम देना पड़ेगा। यहाँ 79, यहाँ 79 करोगे तो नीचे वाले का 80 करना पड़ेगा, तभी तो टोटल आएगा ना 8। यहाँ पे मुझे लास्ट में 8 चाहिए, तो ये 8 अगर मुझे चाहिए यहाँ लास्ट में, तो मुझे एक जने को तो ज्यादा पे करना ही पड़ेगा, तभी तो 9918 आएगा। अगर मैं दोनों को ही 80 कर दूंगी तो वो ये जो ये है ये बन जाएगा 9, विच इज रॉन्ग। ओके तो एक को राउंड अप करो, एक को राउंड डाउन करो, देन इट विल टैली, है ना? या क्यों नहीं, तुम्हें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर लॉसेस हैं तो पीएनएल में कैसे ट्रीट करते हैं लॉसेस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रीट करते हैं लॉसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। दोज हु वांट टू स्टे बैक कैन स्टे बैक, दोज हु वांट टू गो, only the students who were there for the 5:30 lecture can go, rest are not allowed, because the concept which I'm going to do right now is important. आप लोगों की इच्छा है टोटली। क्या वो वाला कॉन्सेप्ट? नहीं, मुझे नेक्स्ट क्लास में पास्ट ईयर गारंटी चालू करना है, हो गया ये। कितना मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए दया आ रही है ना तुम लोगों को। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। इलस्ट्रेशन 33 सॉल्व करो। ध्यान रखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 33 में तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टू बैंक एंड बाय बैंक फिगर। सो ओपनिंग कैपिटल दे रखिए 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। यहाँ देखो कितना दिया ओपनिंग कैपिटल, 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, है ना? और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस दे रखा है ए और बी का, मतलब ए और बी ने यहाँ तो डायरेक्टली भी दे रखा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कैपिटल अकाउंट से ट्रेस करना पड़े, बैलेंसिंग फिगर टाइप नहीं है ना? सो 50,000 और 30,000 भी कंसिडर करना पड़ेगा। लुक, व्हेन यू स्टार्ट ऑन अप्रैल यू विल टेक आईओसी ऑन 2 लाख, yes, for April, May, June, and July onwards you will take IOC on 2,50,000, yes, same thing you'll do for B also, but C has withdrawn the capital to bank। C ने कब विड्रॉ किया, डेट क्या है? ओके तो C के लिए तुम्हें 1 लाख पे 9 महीने के लिए लेना पड़ेगा, एंड देन 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 पे अनदर 3 मंथ्स के लिए लेना पड़ेगा। So you have to consider to bank and buy bank, yes, and accordingly फिर तुम्हें to balance carried down, यहाँ पे balancing figure आ जाएगी। Clear all of you? So ये number of months consider करके कीजिए properly IOC। तो A के लिए कितना आएगा IOC, 2 लाख into IOC का रेट कितना है
इंटू पहले आप 3 मंथ्स के लिए निकालोगे प्लस 2,50,000 into 10% into 9 months. This will be for A. For B, it will be 1,50,000 into 10% into 3 months plus 1,80,000 into 10% into 9 months. This will be for B. For C, it will be 1 lakh into 10% into, कब उसने विड्रॉ किया? 1 Jan को, तो 1 Jan तक कितने महीने बनते हैं? आई गेस 9 months प्लस 80,000 into 10% into 3 months. This will be for C. ऐसा तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा वरना तुम्हारा आईओसी गलत हो जाएगा. So you need to make proper working for IOC. Yes, Ayan and Saili, is it clear? किसने? लोन अकाउंट ऑन 1 April. When they've just mentioned लोन अकाउंट मतलब फर्म की बुक में लोन अकाउंट, तो फर्म ने लिया है. फर्म की बुक में पार्टनर का लोन अकाउंट ना, तो फर्म ने डेफिनेटली लिया है लोन. इट्स पार्टनर्स लोन अकाउंट इन फर्म्स बुक. सो फर्म हैज टेकन अ लोन ऑन 1 April 2023. सो फर्म को इंटरेस्ट ऑन एज लोन देना पड़ेगा. 40,000 पे 6% कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 2,400. तो जब आप बाय पीएनएल अकाउंट लिखोगे, आप 122,150 माइनस 2,400 लोगे इन ऑर्डर टू गेट द करेक्टेड प्रॉफिट्स. फिर जब आप 2 आईओसी लोगे तो ये आपकी आईओसी की फिगर्स हो जाएंगी. सॉरी, सैलरी भी ऐड बैक करना है आपको. सो सॉरी, सैलरी हाँ, कितनी सैलरी है? You add back that also, and then you provide 2 salary अलग से. So 2 salary, 2 IOC, and by IOD भी लेना. IOD के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दी है ड्राइंग्स की. क्या है ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन? A withdraws 2,000 at the beginning of every month. B withdraws 1,500 in the middle of every month. और ये पूरे 12 मंथली पीरियड की बात कर रहे हैं हम. So for A you will take 1,500 into 12. Sorry, 2,000 into 12 into, what is the IOD rate? 10% into, and A is withdrawing at the beginning of every month, so 6.5 upon 12. Got it? For B, it will be 1,500 into 12 into 10% into 6 upon 12 because it is middle of every month. For C, it will be 1,000 into 12 into 10% into 5.5 upon 12 because it is end of every month. तो IOD तुम्हें एवरेज पीरियड लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा. समझ रहे हो? यस. सो दिस इज अ कंप्लीट फुल लेंथ क्वेश्चन ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन जिसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए. सारी एडजस्टमेंट्स कवर अप हो रही है. ठीक है, चलो बताओ फाइनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? IOD निकाल के फाइनल प्रॉफिट निकालिए. एंड द प्रॉफिट्स विल गो टू करंट अकाउंट बिकॉज दे हैव गिवन यू करंट अकाउंट बैलेंसेस. सो कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बना के दिखा दिया. करंट अकाउंट आप होमवर्क में बनाइए. P&L अप्रोप्रिएशन का आंसर बता दो मुझे. क्या हुआ तेजोत, कितना आ गया आंसर? क्या हो गया, बोर हो गया? इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद तो बहुत इजी है, बहुत हल्का चैप्टर है. वो तो बेचारे सब ऐसे परेशान हो गए. मैं इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा रही थी ना मैम. अभी तो सोचो शेयर फॉर फ्यूचर और री इश्यू आएगा तो क्या ही होने वाला है. लास्ट क्लास में क्या कराया था? इश्यू ऑफ शेयर्स उसमें क्या बेसिक्स जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी मैंने. जर्नल एंट्रीज एक ग्रुप में डाली भी है. वो तो आज जो किया वही किया था. मैंने आज जर्नल एंट्री क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करी. उस दिन जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डिस्कस किया था और आज उल्टा एक्स्ट्रा ही पढ़ाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके चलिए बताइए मुझे IOD कितना आ रहा है फास्ट. IOD फॉर A विल बी 1,300. IOD for B will be 900. IOD for C is 550. Perfect. पॉइंट्स में आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता. देख लो भाई जिसको नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम लोग. IOD A का कितना है? A का मैंने आपको क्या बोला?
ए की टोटल ड्राइंग्स कितनी हैं? ओके, फॉर ए इट इज 2000 एवरी मंथ, 2000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है मतलब 6.5. बी के लिए 1500 इंटू 12 इंटू 10/100 मिडल ऑफ एवरी मंथ है, सो 6/12. सी के लिए 1000 इंटू 12 इंटू 10% एंड ऑफ एवरी मंथ है, सो 5.5. हो गया ना, सॉर्टेड. चलिए प्रॉफिट निकालिए. आईओडी इतना आना चाहिए आप सबको. नो 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 नो, परमानेंट, हाउ कैन परमानेंट विड्रॉवल बी ड्राइंग्स? परमानेंट मैंने यहाँ लिखा भी है, परमानेंट विड्रॉवल इज टू बैंक. परमानेंट विड्रॉवल इज टू बैंक. इट्स टू बैंक. मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन ही बता दिया था कि पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक है. वो पता नहीं तुम तो क्यों टू ड्राइंग्स ले रहे हो उसको. वन सेकंड. प्रॉफिट इज 36,000, 24,000 and 12,000. That's correct. 72,000 is the total profit. आया वो ठीक है, बट 72 तो आया सबको 72,000. यस सोहम आया. यस न्यापिका 72. यस तेजोत आया 72. अभी वो ये चैप्टर सेकंड टाइम कर रही है, तो आई थिंक शी इज नाउ गुड विद इट. इशू ऑफ शेयर्स आ रहा है ना, लेकिन समझ अभी. when you'll do it right from the start, now you will be able to understand.